Hello guys and welcome to the English World of Aradhya classes. I am Rashmin Dabi, teaching you mainly English to the students of 9 to 12 standard. We have already begun our lessons and this lesson is for the students of 12 standard. In the earlier video we had seen the half part of it. Now today we will try to complete the lesson. So what we had seen so far is the story set in the background of the Franco-Prussian War. Now, Franco-Prussian War took place in 1870 to 1871. Here, it started in July and ended almost in February. So, July 1870 to Feb 1871. It lasted for about 8 to 10 months. But this was a turning point in the history of France because Prussia at that time consisted of 3 nations. Today's 3 nations were the part of Prussia at that time. They were Germany, Poland, and some part of Austria. Some part of Austria. Okay, and initially only French army could not cope up with the attack of Prussian, so they started losing their areas. First 2 areas they lost were Alsace and Lorraine. So these were the districts of France, Alsace and Lorraine. Now this lesson is talking about the district of Alsace. What are the effects due to this war? What changes come over there? Okay. Now here we have the protagonist, central character. His name is Franz. He is our protagonist. Protagonist here is central character. He is not a big guy. He is just a school-going child. And the story revolves around him and also around the school. So what effects this Prussian war had on the district of Alsace? They had to accept many things. Whatever came from the Prussian government, means basically the German people. And its effects could be seen even on the education system. Now they are ruling over the district of France. So they don't want the French language or any French subject to be taught in school. Instead, they want to start teaching German language. So that's how the school has just started and it comes to the end. Their education system comes to an end and now they will have to follow the German education system. So that is the bad news. So when France is going, I am just refreshing the story. When France is going to school on that particular day, earlier teacher had given the homework to the students. Understood? And homework was to learn the rules of participles. Now France did not know any rule, so he did not feel like going. Secondly, the atmosphere was so nice outside that he was tempted by that atmosphere. But then he showed his resistance and he then decided to go to school. While he is going to school, on his way, he is getting late. One person is there. His name is Utster. He is telling him not to go fast because he says that you will reach in time, but he is just making fun of him. And on his way, he also sees a big crowd in front of the town hall. Now this particular place is what? A fearful place for all the people of Alsace. Because all the bad news since the war has started about the losing soldiers, losing area, losing weapons, okay, killing of the people, all those news have come through this town hall. In front of town hall there is one bulletin board, and on bulletin board anything that Prussian people decide is written. That is just an order. The people of Alsace have to follow it. That's it. Understood? So he passes by that, but he doesn't have time to stop over there and see what is the matter. So he just says in surprise, now what could be the matter? Then he knows that if he goes to school,
late, the school will have started, and in that atmosphere, how could he enter the class? Their teacher, M. Hemal, he is a very strict teacher. He is always moving in the class with one scale in his hands, one ruler in his hand, and all the students are sitting quietly. So if he enters, he will be insulted by the teacher, and all the students will witness it. He is afraid of that. But he thinks that before the school begins, the children are moving here and there, some activity is going on, teacher has not come to the class. So he wants to enter into the class at that time so that he can enter unnoticed. Nobody can notice him. But when he reaches the school, what happens? From the far he sees that there is no noise, nothing. Earlier regular routine is what? When he reaches school, the students are moving, they are talking, they are chatting with each other, playing something, and there is also the sound of opening and closing of the desks and many other sounds. But today, from a distance only, he notices complete silence. So students, he is surprised. All this we had seen in our previous video. And then also he decides to go to the class. And when he goes, asks for the permission from M. Hemal. M. Hemal, he thinks that today to padegi, aaj to insult ho gayi, daw ho gaya. But that is not the case. M. Hemal's different nature is seen over here. He is quite serious. He just asks him silently, go to your place. So this is also surprising for him. कि सर ने कुछ इंसल्ट नहीं किया, कुछ मारा वारा कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंटली बोला अपने जगह पे. Okay, and then when he goes, he gets composed over there, and afterwards he notices that along with the other children, there are other village people also who are sitting on the back benches. Now back benches in the normal days were remaining empty, खाली रहती थी, कोई नहीं बैठता था. पर आज वहाँ विलेज के लोग हैं, स्टूडेंट्स, फिर some people of this one importance are there, like postmaster. Okay, former postmaster is there, former mayor is there, one old officer is there. These are the people sitting over there. So he gets more surprised कि ये लोग यहाँ क्यों है. Then his attention is also drawn to the attire put on by M. Hemal. अभी आया M. Hemal से परमिशन ली क्लास में आने की, तब तक उसका ध्यान उनके अटायर पे नहीं गया. अटायर बोले तो ड्रेस, उनका ड्रेसिंग था वो. तो टुडे ही हैज पुट ऑन ग्रीन कोट, ओके, एंड ही हैज पुट ऑन आल्सो पुट ऑन द फ्रिल्ड शर्ट. फ्रिल्ड शर्ट यानी वो थोड़ी रिंकल वाली शर्ट आती है, वो फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं उसको. एंड ही हैज आल्सो पुट ऑन वन सिल्क ब्लैक कैप. तो नॉर्मली दिस ड्रेस ही वुड पुट ऑन ओनली ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और ऑन इंस्पेक्शन डे. और ऐसा तो कुछ उनको बताया नहीं था कि अगले वीक पहले दिन तुम्हारा इंस्पेक्शन डे है या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है. सो ही गेट्स मोर सरप्राइज्ड कि व्हाई ही हैज पुट ऑन दिस ड्रेस. सो अप टिल नाउ एवरीथिंग इज सस्पेंस फॉर हिम. एंड देन द ओल्ड हॉसर हैज कम विद अ प्राइमर. प्राइमर इज व्हाट? अ स्मॉल बुक व्हिच स्मॉल किड्स लर्न. ABCD वाली बुक होती है जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं. नाउ ही वांट्स टू स्टडी एट दिस एज. And then sir comes and directly M. Hemal just announced that today is going to be your last lesson. So all get surprised, but Franz gets surprised more. And M. Hemal also makes it clear that this is the rule, new rule, which has come from those Russian people. कि कल से हमारे स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा. So today is the last French lesson. So he gets surprised, he gets shocked, but he also realized कि वो जब मैं आ रहा था तब वो टाउन हॉल के आगे जो बुलेटिन बोर्ड के आगे जो भीड़ खड़ी थी, वो भीड़ क्या देख रही थी, यही रूल वहाँ पढ़ रही थी, इसलिए वो लोग वहाँ खड़े थे. तो अभी इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी अटैक करना शुरू कर दिया है. दे आर सपोर्टिंग आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन. अंडरस्टूड? So he gets surprised. Now he realizes the true value of education. He thinks that up till now we took it for granted कि टाइम है, पढ़ लेंगे और ये अचानक बंद हो जाएगा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था. तो स्टूडेंट, सेम थिंग मे बी द केस फॉर यू. इन माय लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये तुम लोग 12th में हो
अभी ये थोड़ा कोरोना का माहौल चल रहा है, स्कूलें चालू नहीं हो रही है, वी आर टेकिंग ट्रबल टू टीच यू थ्रू दिस वीडियोस। तो एट होम यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, everything you are supposed to prepare on your own. You are neither going to school nor coming to class. At least class people are sending you these videos so that certain subjects, certain lessons can become clear for you. So as soon as the lesson gets over, you prepare the answers and other exercises. So any time exam comes, you are ready for that. Understood? In certain subjects you won't have to see again. So here they are feeling sorry कि यार अभी तक पढ़ने का तो अब नहीं पढ़ा, and now what shall we do? They don't know proper French. French है और French लिखना बोलना नहीं आता, तो ये एक इंसल्ट जैसा है. And then M. Hamel also talks about the language as everyone says. हर एक को अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हर एक को अपनी लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज लगती है. यहाँ भी M. Hamel यही अनाउंस करता है कि आवर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ओके, और मोस्ट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. ये बात वो अनाउंस करता है, ऐसे हर कोई अनाउंस करता है. बाकी अभी तक मैंने क्या है अनुभव से सीखा है, काफ़ी लोगों से भी सुना है, इस वर्ल्ड में सबसे अच्छी बोली कौन सी है, सबसे खूबसूरत बोली कौन सी है. तो यू माइट गिव मैनी नेम्स, बट व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस इज हमारे इंडिया की जो ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषा वर्ल्ड में सबसे मीठी बोली है. इसमें कोई तुम्हें गाली देगा तो भी यू विल एंजॉय, इतनी मीठी बोली है. अंडरस्टूड? सो ही टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज. देन ही आल्सो रिमाइंड्स देम कि अप टिल नाउ यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, नाउ हु विल टीच यू फ्रेंच? एंड द पीपल हु आर देयर नाउ whom he is pointing, M. Hamel is pointing the Prussian soldiers who are doing their practice at some distance. They can be seen from the class. कि वो लोगों को अभी चांस मिलेगा कि तुम फ्रेंच और फ्रेंची तुम्हें नहीं आती, ऐसा टॉन्ट मारने का. अंडरस्टूड? So that's where I think we had stopped in our last lecture. Now I'll continue from there. Okay, page 7, second paragraph. I had never listened so carefully, and that he had never explained with everything with so much patience. Understood? It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. बराबर? तो आज तक हमने कभी इतने ध्यान से सुना नहीं था जब सर पढ़ाते थे तब, या तो इतनी पेशेंस से उन्होंने भी कभी पढ़ाया नहीं था, क्योंकि उनको भी शायद कोर्स कंप्लीट करने का टेंशन होगा, तो उन्होंने भी थोड़ा ऐसे ही दिया. तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि ये सर को आज ही सब कुछ पढ़ा देना एट वन स्ट्रोक, यानी वन अटेम्प्ट में ही बुक में जो भी आता है सब कुछ पढ़ा देना है. बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड्स तो दे विल बी टॉट अबाउट जर्मन, तो फ्रेंच को जो भी जानते हैं या जो भी उनके सिलेबस में आता है, ऐसा लगा कि आज ही उनको पढ़ा देना है. सो ही इज शोइंग ऑल द सीरियसनेस फॉर दैट, एंड चिल्ड्रन आर आल्सो सीरियस टू लर्न दैट. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे M. Hamel हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. बराबर? ये दूसरा पीरियड चेंज हुआ, ग्रामर का हो गया, अभी ये राइटिंग का है. तो राइटिंग के लिए क्या लाए थे M. Hamel? थोड़ी कॉपीज लाए थे. उसके ऊपर क्या लिखा था? Written in a beautiful round hand, France Alsace, ये लिखा था. They looked like little flags floating everywhere in the school room. फिर उन्होंने बांट दिए, तो स्कूल में ये छोटे छोटे झंडे हो ऐसा लग रहा है, फ्रांस Alsace ऐसा लिखा है. Hung from the rod at the top of our desk, डेस्क के आगे एक रॉड था, वहाँ सबने वो लटका के रखा, ऐसा लगा. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. पहले जब ऐसा लिखने का काम देते थे तो लोग लिखते थे, नहीं लिखते थे ऐसा, पर आज तो सब लिखने लग गए. और क्या है, एकदम क्वाइट है, एकदम शांति है. जब लिखने का काम पहले देते थे तो शांति नहीं होती थी, बट दे नो दैट टुडे इज द लास्ट डे, सो ऑल हैव बिकम सीरियस. द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. अभी पूरे क्लास में एक ही आवाज आ रहा है. कौन सा आवाज? जो बच्चे लिखते हैं तो पेन का आवाज होता है पेपर पे, वही आवाज आ रहा है, बाकी सब साइलेंस है. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in. Beetles यानी भंवरे. क्लास में बाहर से भंवरे आए, क्योंकि बताया था ना क्लास के आगे इनका गार्डन है, तो गार्डन में भंवरे रहेंगे, तो वो भंवरे क्लास में आए.
बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. अभी ये क्लास में बड़े बच्चे भी बैठे, छोटे बच्चे भी बैठे, ये भंवरा आए क्लास में तो कैसी हालत होगी, सब चिल्लाएंगे और वो सब, पर यहाँ कोई उसके सामने दिखता भी नहीं है। और एक भंवरा नहीं था, काफी भंवरे हैं, beetles, it is written in plural. Then also nobody paid any attention to it, who worked right in on tracing their fish hooks. तो little ones क्या करते थे, वो ट्रेस करते थे फिश हुक को, as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low. रूफ के ऊपर देखिए तो फ्रांस का ध्यान अट्रैक्ट हुआ रूफ के ऊपर, क्यों? क्योंकि वहाँ ये पिजन्स बैठे थे, कबूतर, और वो अपना आवाज निकालते थे, कूइंग करते थे, तो इसका ध्यान वहाँ गया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? ये प्रशियन लोग हमको कल से जर्मन सिखाने वाले हैं, ये पिजन को भी जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में गाना ये कूइंग करना सिखाएंगे। अंडरस्टूड? ये सबके ऊपर अपना रूल जमाते हो, सबके ऊपर अपनी इफेक्ट लाते हो, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट लाएंगे। नाउ यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. ये फ्रांस में बैठे बैठे लिखता था, पर जब भी वो ऊपर देखे तो एम हेमल को दिखता था, तो एम हेमल कैसे बैठे थे? मोशनलेस, कोई भी प्रकार की हिलचाल नहीं अपनी चेयर में, और क्लास की हर एक चीज को गेज कर रहा था। गेज कर रहा था यानी स्टेयर कर रहा था, यानी टू लुक कंटिन्यूअसली, एज इफ ही वांट्स टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ इट इन द माइंड। पहले एक चीज को देखेगा, फिर दूसरी को देखेगा, फिर तीसरी को देखेगा, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ये उसको इंप्रेशन ले जानी है कि हमारे छोटे स्कूल के रूम में सब कैसी हालत थी, फैंसी, ये उसकी कल्पना है, उसको सब अपने साथ ले जानी है। For 40 years he had been there in the same place. 40 साल से वो ये जगह पे पढ़ा रहा है। It's a very long time, students. With his garden outside the window and his class in front of him. इसलिए वो भंवरे आए थे, देखो यहाँ पर आए। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. 40 साल से वो पढ़ा रहा है, तो 40 साल में डेस्क और बेंचेस थोड़े घिस गए हैं, बाकी का सीन वैसे का वैसा ही है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन्स वर टॉलर। गार्डन में जो वॉलनट ट्री है वो भी अभी थोड़े बड़े हुए हैं। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइंड अबाउट यानी ट्विस्टेड अबाउट। ये हॉपवाइन एक क्रीपर है, वो क्रीपर विंडो की ओर चढ़ चढ़ के ट्विस्ट करके आगे बढ़ा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। ये सब छोड़ने में उसको कितना दर्द हुआ होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये सब चीज़ें छोड़ना उसको कैसा दर्द हुआ होगा। मेरे एक चाचा थे स्टूडेंट्स, अभी 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गए, बराबर। उनका लास्ट टाइम आया तो उन्होंने सब घर बनाया, घर को इकट्ठा किया, बच्चों की शादी की, पूरा घर बसाया, और फिर उनका लास्ट टाइम आया तो उनको पता चल गया कि अब मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा। तो वो मेरी चाची से एक ही बात करते थे कि ये सब छोड़ के जाने का मन ही नहीं होगा। हाउ कैन आई लीव ऑल दिस, ये सब मेरा बनाया हुआ है, मेरा बसाया हुआ है, ये सब छोड़ के मैं कैसे जा पाऊँगा। अंडरस्टूड? सो हियर ऑलमोस्ट द सेम फीलिंग इज देयर फॉर एम हेमल ऑल्सो। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स। इसी वक्त वो जब सोच रहा है तब उसकी सिस्टर टॉप फ्लोर पे क्या कर रही है, सब पैकिंग कर रही है, ट्रंक्स यानी पटारे पैक कर रही है। दैट इज अ साइन दैट दे विल हैव टू लीव, और नए मास्टर कल आएंगे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को उनको छोड़ना है, इसलिए आज पैकिंग कर रही है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बराबर। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब ये तीसरा पीरियड है, पीरियड चेंज हुआ, राइटिंग का पीरियड खत्म हो गया, हिस्ट्री का आया। And then the babies chanted their बाप, बेबी, बू, बू। फिर ये बेबी लोगों के लिए बाराक्षरी बोलते हैं, वैसा ही वहाँ ये फ्रेंच में है, तो वो उनका पीरियड आया ये चैंटिंग करने का। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. तो ये पीरियड आया था, ओल्ड हॉसर, पता है ना, वो अनपढ़ आदमी है, वो छोटे बच्चों की प्राइमर लेके आया था, तो उसने भी अपने चश्मे लगा दिए था।
ये इनके साथ बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। ये छोटे बच्चे जो स्पेलिंग बोलते थे शब्दों की, वैसे उसने भी बोलना शुरू किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। कोई भी देख सकता है कि सिर्फ दर्द ये ओल्ड हॉसल की आंखों में भी है, वो भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। जब वो बोलता था तो उसमें दर्द भरी आवाज भी आती थी, तो ये उनको देखने के हंसे या रोए, ये भी एक डिसिसिव पॉइंट था हमारे लिए। ये बोलता है तो इसके बोलने पे हम हंसे या रोए, बिकॉज ही इज शोइंग विथ स्पीकिंग विथ इमोशंस। ओके, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रांस बोलता है ये मैंने लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह याद रखा है। बाकी कोई लेसन याद नहीं रहा होगा, पर ये लास्ट लेसन जब तो सब डिटेल्स उसको पता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलस। स्टूडेंट्स, ये हमारे चर्च में हर रोज दोपहर के 12 बजे चर्च का बिल बजता है। अभी यहाँ सिटी में शायद रूल ला के बंद कर दिया, हम लोग पढ़ते थे तब तक बजता था। गांव के साइड भी जो चर्च है वहाँ भी 12 बजे ये चर्च का बिल बजता था। तो उसका मायना क्यों है? वो चर्च का बेल 12 बजे पड़े तब सब क्रिश्चियन लोग ये एंजेलस की प्रेयर करते हैं। एक स्पेशल प्रेयर है जो 12 बजे हम करते हैं। अभी गांव की शायद ये गांव की साइड होगा, पर यहाँ शहरों में बंद कर दिया है। बाकी तब वो गांव में जो लोग खेतों में भी खाने जाते थे उनके लिए भी ये लंच ब्रेक का सिग्नल था कि चर्च का बिल पड़े तो खेतों में से सब क्या है लंच ब्रेक के लिए जाएंगे। वो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एंजेलस की प्रेयर करते हैं, वो 10-15 मिनट की प्रेयर होती है। ओके, तो यहाँ चर्च बिल पड़ा, देन दी एंजेलस, जैसे ही वो पड़ा तो फिर एंजेलस की प्रेयर शुरू की। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. पहले बोला था कि ये स्कूल से थोड़े दूर ये प्रशियन लोग अपना ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बाद में इनके ट्रम्पेट्स की भी आवाज आने लगी इनके विंडो तक, वो रिटर्न हो रहे। M. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. ये खड़े हो गए और कभी मैंने इनको इतना टॉल नहीं देखा था। My friend said he, I, but something choked him. वो कुछ बोलना चाहते थे, पर कोई चीज ने उनकी आवाज रोक दी। चोक यानी स्टॉप्ड। He could not go on, वो आगे बोल ही नहीं पाए, वो भी इमोशनल हो गए, because this is the time of separation, students. He is separating from all these things. My friends said he, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, अपने पूरे पावर से, might यानी पावर, might यानी ताकत, पूरे ताकत से he wrote as large as he could. ब्लैकबोर्ड पे जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा उसने लिखा। क्या लिखा? Vive la France। बराबर, इसको अपने इंग्लिश में पढ़ेंगे, then it is Vive la France। ओके, तो जितना हो सके उतनी बड़ी हैंड राइटिंग में वो बोल नहीं पाए इसलिए बोर्ड पे लिखते हैं। What did he write? He wrote Vive la France। ये जब फ्रेंच में पढ़ते हैं तो Vive la France पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो Vive la France। तो ये तो उसका प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। और इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये हमारे हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसा नारा है, लॉन्ग लिव फ्रांस। बराबर, फ्रांस गुलाम नहीं बने, यही उम्मीद ये नारे से करते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस लंबे टाइम तक रहे, वो किसी के अंडर में नहीं चला जाए। ओके, देन he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us, gesture यानी साइन, हमको एक साइन की with his hand, अपने हाथ से, कि क्या है? School is dismissed, you may go। He did not say these words, he just made a sign for these words. Understood? So here students we end the lecture. This lesson is I suppose very clear with you. Now for its question answers, there are 4 or 5 questions, very important questions. You can come to know through
So this camp publication, in camp publication everything is given. Okay.